Welcome to Hit TV viewers. So today we have Mohammad Imran from us from Time Tour. So hi sir. Hi, आप hello. क्या हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि टाइम टूर एक्चुअली करता क्या है? Actually, Time Tooth is basically a Indian-based company, and Time Tooth is known for their new product development because we are core in R&D department. So we did lots of multiple projects for the ISRO, VSSC, AD, DRDO, and now basically अभी हम लोग जो है अभी जैसे हमारा नया सीट अभी वी आर गोइंग टू लॉन्च सून आवर एयरक्राफ्ट सीट. So this is the first Indian seat which is going to be manufactured, totally designed, manufactured and assembled in India. That means the fully indigenization. We support indigenization, and due to which the seats you are seeing here, this is fully from design to the manufacture, everything made in India. So the certification is in process. Maybe we will launch this maybe in next 2-3 months, and this will be going to fit in the HAL like Hindustan 228, which is named as a smaller utility, normal utility aircraft. So basically we will be soon planning to launch our next seat like in economical seat, and also for the bigger aircraft. So, and also this is the one aspect of the Time Tooth which is in the civil defense and aerospace, and there are lots of projects like you have seen the landing gear system. We are the first company who made the landing gear system for the Rustam 2 aircraft, and we are also the first company who made the landing gear system for the reusable launch vehicle, which is recently has the testing has been done, and then testing fantastically supported by our landing gear system. So we are in the multiple domain of the R&D,
and we are a core engineering development team. ये सीट बनाने में क्या मटेरियल यूज़ होता है सर? ये मतलब आपको मल्टीपल मटेरियल है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल लाइक वी हैव यूज्ड द एल्युमिनियम alloy, then fabric, then cushion, then tubes, and the multiple compositions. But basically we have to make it lighter, we have used in the aluminum alloy. मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीट्स होते हैं उससे इसमें क्या डिफरेंस रहता है? सर अभी ये जो सीट में डिफरेंस है, फर्स्ट इज़ द मतलब इन एनी एयरक्राफ्ट अभी जितने भी जहाज़ उड़ रहे हैं आपको कोई भी सब के सब इम्पोर्टेड हैं. मतलब कोई भी सीट बनाने वाली कंपनी है नहीं है. हम लोग अपना मेक इन इंडिया के तहत फर्स्ट सीट है जो हम लोग सब कुछ ही इंडिया में डेवलप किया है. तो पहला चीज़ तो ये है कि इंडिजनाइजेशन. दूसरी चीज़ ये है कि वी विल बी कम्पेट विद टू मेक आवर सीट लाइटर, लिटल लाइटर और मोर कंफर्टेबल. सो जो भी अभी एग्जिस्टिंग सीट्स है जो इस कैटेगरी बेस्ड एयरक्राफ्ट में है वो अभी इससे हेवियर है. तो वी विल बी होपफुली कम्पीट विद रिडक्शन इन वेट्स. तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है अभी कि मतलब जितने भी सीट्स होते हैं मोस्टली सब इम्पोर्टेड होते हैं. तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि इंडिया में लोग अपनी सीट मतलब मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं एरोप्लेन के लिए? बिगेस्ट रीज़न दैट कि द सर्टिफिकेशन प्रोसेस. तो बिकॉज एनीथिंग अगर कुछ भी जहाज़ में आपको लगाना इट्स नॉट ए ईजी टास्क. देयर इज सेफ्टी रेगुलेशन, देयर आर इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस एक्सेलेंस, एवरीथिंग नीड टू बी accommodated. So मतलब it's not easy task to something can be easily installed in the aircraft. So मतलब this the quality process, the certification process, all things are very stringent when you talk in the aviation department. Even if you can't just select a bolt and install in the aircraft. So that level of quality will have to stay. So that's why nobody in the market is still the 10 years of decade, nobody in all are imported. So we thought that being a technical person, being a engineering, we have lots of scope in our India, but we have to come with our own indigenous seeds. Got it. Thank you so much for the information. हाय व्यूवर्स, सो आज हमारे साथ है अभिषेक जी फ्रॉम ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर. हाय सर, क्या आप आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स? वी आर द लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर कंपनी इन इंडिया. हमारे पास इस टाइम पे 30 हेलीकॉप्टर है एंड 2 रेंटेड है. तो बेसिकली 32 है. 2 रिलायंस है एंड 30 हमारा है. और डिफरेंट एयरबस एंड डिफरेंट काइंड से हम हमारे वो लीज पर है. कुछ हमारे खुद के. और हम इस टाइम पे ऑफशोर एंड ऑनशोर में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ऑफशोर रिलेटेड है ऑयल एंड गैस रिलेटेड एंड ऑनशोर बेसिकली फॉर पिलग्रिम ऑपरेशन है, GSI सर्वे लाइक दिस. तो प्रेजेंटली आपने बोला कि 30 हेलीकॉप्टर्स हैं आपके पास. तो ये जो 30 हेलीकॉप्टर्स हैं कहाँ पे अभी मौजूद है? अभी मौजूद इस टाइम पे जो जैसे अभी मुंबई में जुहू में जो ऑफशोर बेस में लगे रहते हैं ज़्यादातर बेल, जो भी जितने भी है वो बेल से रिलेटेड. एंड सिंगल इंजन है. सिंगल इंजन फिर कटरा में होते हैं VTGVO और वैष्णो देवी. एंड अब इस टाइम पे कुछ ICPL जो अगर कुछ इलेक्शन में लगे रहते हैं वो ही सब है. ये हेलीकॉप्टर का जो नॉर्मल पब्लिक के लिए होता है, जैसे आपने बताया कि केदारनाथ में वहाँ पे यहाँ पे है, तो उसका किराया कितना होता है उनके लिए? किराया तो सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है. तो किराया तो हम डिसाइड करते नहीं. अभी टेंडर जब अलॉट होता है हमें उसी में सब चीज़ डिसाइड होती है. मतलब आप गवर्नमेंट से टेंडर ले लेते हैं और वहाँ पे आगे जाके गवर्नमेंट अपना किराया डिसाइड करती है. सर्विस प्रोवाइड करते हैं. अच्छा. टेंडर गवर्नमेंट निकालती है. और ये जो एक हेलीकॉप्टर होता है इसका अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट कितना होता है? आई डोंट नो. नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच अभिषेक जी.